स्टूडेंट्स, सो टुडे फिजिक्स सेकेंड लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक्स और शेयर करें। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का सेकेंड पार्ट। सो कूलम्ब्स लॉ में यूज इन कूलम्ब्स लॉ, so unit charge, what is unit charge? Okay, so if let q1 and q2 is equal to q, 1 meter and force is applied 9 into 10 to the power 9 newtons. So but why its a value is 9 into 10 to the power 9? So we know that Coulomb's law F equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square. So putting this value in equations, F 9 into 10 to the power 9, this also 9 into 10 to the power 9, q1 q2 क्या रखेंगे, q पुट करेंगे, so q square r equal to 1 meter, so this is cancel out, q square and then q is equal to plus minus 1, so charge positive plus 1 and minus 1 also. So I am repeating again, in air are vacuums, two equal point charges apart, distance is small, what are 1 meter and force is 9 into 10 to the power 9 newtons will be applied in that force. So charge is unit charge is the value of 1, this is also called unit charge. Okay, so simple, एक सेकेंड टॉपिक है एप्सिलॉन 0 of dimension formula. So we know that F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. This is the famous formula of Coulomb's inverse square law. The Coulomb force F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. So epsilon naught, this q1 q2 upon r square, एप्सिलॉन को f की जगह, f को एप्सिलॉन की जगह ट्रांसफर कर दिया. So this is the 1 upon 4 pi, the constant terms, 1 upon 4 pi, the constant, and this is the dimensionless quantity. So 1 upon 4 pi is dimensionless quantity. So remove this according to dimension analysis. Dimension analysis में students constant terms को remove कर दिया जाता है. So only for f q1 q2 upon r square. So we know that putting the value of dimensions q1 q2 f and r. So put this value, q का डायमेंशन a into t, so दो बार है तो 2 टाइम्स से 2 का स्क्वायर. फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, r का होगा l स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस a t का होल स्क्वायर है a स्क्वायर t स्क्वायर. ओके, सो m l l स्क्वायर l क्यूब हो जाएगा, t माइनस 2, इसको ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स. सो m इनवर्स, m ऊपर जाएगा, m इनवर्स l माइनस 3, ये t की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, t की पावर माइनस 2, t की पावर 2, t की पावर 2, t की पावर 4 और देन a स्क्वायर. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो मोर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है
कि डायमेंशन क्या होता है इसका, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ओके स्टूडेंट्स. So limitations of Coulomb's law. So some discussion of limitations of Coulomb's law. So first points, getting one point. First points, this the charge is only for point charges applicable होते हैं Coulomb's law में, only for use in point charges. And second, then the distance apart between two charges Q1 and Q2, डिस्टेंस जो होती है इनकी दोनों की डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, लेस देन 10⁻⁻15 ओके मीटर नियर बाय. एंड दिस इज द पॉइंट एंड रेस्ट. सो फर्स्ट पॉइंट चार्ज, सेकेंड डिस्टेंस इज 10⁻⁻15 मीटर approximately, not for exact, this is the approximately. And third, charge at the rest position. Okay students, so charge is rest position. So limitations of Coulomb's law. So this is topic of limitations of Coulomb's law. There are 3 points, important points. The point charge applicable point charge के लिए होता है Coulomb's law. दोनों के बीच डिस्टेंस जो होना चाहिए, चार्ज के बीच में डिस्टेंस वो 10⁻⁻15 मीटर्स के नियरली होना चाहिए, और चार्ज जो होना चाहिए वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए. So next topic students, Coulomb's law in vector form. Okay, so it's very simple. So we know that Coulomb's force F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the simple formula of Coulomb's force, Coulomb's law. Okay, but हम यहाँ पे Coulomb's law in a vector form देखना है. So this is the vector, force is a vector quantity. So force is a vector quantity, and this is the concept, and Q1 Q2 mod of and distance. So 1 2 and 2 1 is the force, and 1 2 also cap. Okay, this is the unit vector, and unit form R1 cap R vector upon mod of R. This is the unit vector. Okay, unit vector का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, R12 इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R. ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यहाँ अप्लाई किया हुआ है. इसकी वैल्यूज एक्चुअल में 1 होती है यूनिट वेक्टर की, इसलिए 1 का हम इंटू कर सकते हैं. सो Coulomb's लॉ वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट चार्जेस के कारण सेकंड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड सेकंड चार्जेस के कारण फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई होगा, तो इसका जस्ट रिवर्ट पार्ट होगा. Q1 Q2 सेम इट इज रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, और यहाँ पे जो रहता है उसका अपोजिट हो जाता है. 1 2 है तो क्या जाएगा R 2 1 का स्क्वायर, ये मॉड के बाहर है, एंड देन 2 1. Okay students, so there are 2 steps in vector law, vector form, Coulomb's law in a vector form. This is the formula, and descriptions करना है तो हम इसको 3D में ले आके आपको बता सकते हैं. देखिए इसको हम 3 एक्सिस में कवर करने की कोशिश करेंगे. There are x axis, y axis and z axis. So Coulomb's law in a vector form, there are 3 axes, x axis, y axis and z axis. Okay students, so there are 2 charges
present in Q1 and Q2. So distance of origin, this is the R1 vector and this is the R2 vectors. Okay students, so A and B, there are two positions. Okay students, so this force is applied and this force is also applied. पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगा. इस चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट पे फोर्स जो होता है वो होता है F21 सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट पे, और यहां पे आ जाएगा फर्स्ट चार्ज के कारण सेकंड पे फोर्स. ये इस चार्ज पर फोर्स आएगा इस चार्ज के कारण. Okay, this charge is and force is F21 and this marking this the distance between A and B R12 cap. So this is the Coulomb's law in vector form. So first 1 2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2. 1 2 है distance, तो 21 मॉड का स्क्वायर 21 वेक्टर. यहाँ पे केप होता है एक्चुअल में, और केप से फिर वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो देखिए. 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन 21 का स्क्वायर. यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R. ओके, सो यहाँ पे अप्लाई होगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21. ओके, सो सॉल्व दिस. वेरी सिंपल. Q1 Q2 अपॉन R21 मॉड ऑफ R21 मॉड ऑफ RQ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2. Okay students, so this is the vector form of Coulomb's law and also Coulomb's law in a vector form. So 1 2 for second force के कारण फर्स्ट पे, सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई होता है F12. पीछे से स्टडी करते हैं, पीछे से पढ़ते हैं उसको. सेकंड के कारण फर्स्ट पे फोर्स. ओके, और इसी का सिमिलर पार्ट है, अपोजिट कर देंगे हम. सो F21 जैसे 1 2 है तो F21 हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कांस्टेंट टर्म से सेम रहेगी. Q1 Q2 सेम है. ओके स्टूडेंट्स, सो R यहाँ क्या है 2 1 है, तो यहाँ क्या जाएगा 1 2 का क्यूब एंड 1 2 वेक्टर. ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's inverse square law. Okay, so this I am repeating again. We can see the pictures. There are three axes, x, y and z axis. Okay, so A and B, there are 2 points, positions of a charge Q1 and Q2. Okay, and distance of origin O. Charge is Q1 is distance is R1 and charge is Q2 is distance is R2. We can see the pictures. We can apply the force F12 and F21. So second charge से फर्स्ट पे, फर्स्ट चार्ज से सेकंड पे, दोनों पे फोर्स अप्लाई होगा. एक दूसरे पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 2 एंड 2 1. सो 1 2 और 2 1 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना. सेकंड के कारण फर्स्ट पे अप्लाई होता है और सेकंड के कारण फर्स्ट पे अप्लाई होता है. यहाँ पे फर्स्ट के कारण सेकंड पे अप्लाई होता है फोर्स F21. ओके, दिस इज द Coulomb's इनवर्स स्क्वायर. Coulomb's law वेक्टर फॉर्म्स जो अभी हमने आपको स्टडी कराया. F12 इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे 1 2 लिखा था, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2 1 मॉड Q ऑफ 2 1 वेक्टर. ओके, सो इसी को हम आगे स्टडी कराते हैं. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पूरा सेम रहेगा पूरी इलेक्ट्रिसिटी में.
अब यहाँ पे किसी किसी बुक में आपको 2 1 है तो 1 2 माइनस 1 R2 माइनस R1 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। सो R1 माइनस R2 वेक्टर सेम R1 माइनस R2। इसी का सिमिलरली इफ जैसे 1 2 है, सेकेंड चार्ज करंट फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, F12 ऐसे ही सिमिलरली फर्स्ट चार्जिंग करंट सेकेंड पे फोर्स, यहां क्यूब होगा स्टूडेंट्स। सो यहां पे हम माइनस कॉमन लेते हैं और एक स्टेप लेके आते हैं, है ना। सो देखिएगा ये जो स्टेप्स हैं इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कांस्टेंट बाहर है, सेम इट इज Q1 Q2 सेम है, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। R1 माइनस R2, यहाँ क्या करना है R2 माइनस R1, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पे मॉड है, मॉड से बाहर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड में R12 इज इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू क्या की है, ये वैल्यू है 21 की, F21, ओके। और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ये भी एक कूलम्ब्स लॉ का फॉर्म होता है। दोनों फोर्स जो होते हैं फर्स्ट चार्जिंग करंट सेकंड पर फोर्स इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होती है अपोजिट। सो नेगेटिव साइन वी शोज दैट ओनली फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड टोटल चार्जेस, इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा दिस इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स में हमने आपको ये क्लियर किया है कि 1 2 फोर्स 2 1 दिस इक्वल टू 0, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी होता है बिटवीन टू चार्जेस, ओके। ये टू चार्जेस के बीच में कंजर्वेशन दोनों फोर्स होते हैं, वो उनका सम क्या होता है 0 होता है। ऐसे 3 फोर्सेस के कारण होगा तो 3 फोर्सेस के में भी तीनों फोर्सेस के लिए सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। सो दिस इक्वेशंस So next topic, electric field. So what is the definition of electric field? Okay, so simple definitions, कोई भी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा जहां जहां तक अपना इफेक्ट शो करता है, इफेक्ट मतलब इस पर अदर चार्जेस आते हैं -q, इसके एरिया के अंदर ये क्या करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देता है, और यहाँ पे सेम चार्ज आता है कोई अदर्स तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा देता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब दूर कर देता है उसको। तो पूरे राउंड जहाँ जहाँ तक इसका इफेक्ट होता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली कैपिटल E से डिनोट करते हैं, ओके। सो सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल E द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हाई? So that is the reason force is a vector quantity. So unit force पर जो F vector equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स E vector, जो फोर्स अप्लाई होता है यूनिट चार्ज पे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, so F equal to Q by this formula E equal to F by Q. So F वेक्टर जो फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। सो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसी का सब हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
So definition of intensity of electric field, so simple, is denoted by capital E. यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, वो फोर्स ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो बट व्हाई? सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, so Q is equal to 1 unit, so F equal to this. इसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो सिंपल है यूनिट फाइंड करना. फोर्स की क्या होती है स्टूडेंट्स? सभी को मालूम है न्यूटन. और चार्ज की क्या होती है स्टूडेंट? कूलम. ओके, सो न्यूटन पर कूलम इसकी सिंपल यूनिट हुई है ना. इसका डायमेंशन फार्मूला स्टूडेंट्स, ई सेमिटी से रहेगा. फोर्स का डायमेंशन सभी को नॉलेज में है, mLT-2 एंड चार्ज का a इंटू टी. सो इसको सॉल्व करेंगे. m l और t कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, a हो जाएगा इनवर्स. सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ E. ओके, सो वेरी इजी. आई एम रिपीटिंग अगेन. सो यूनिट फोर्स, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स और चार्ज दोनों के रेशियो को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सिंपल डेफिनेशंस और अनदर वर्ड्स, द सिंपल डेफिनेशंस, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, सो एनी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो लेट O, if any point at present charge plus Q and point O up to small r distance when we present point P suppose, and testing charge is plus Q0. So due to find the intensity of electric field at that point P, and suppose we know that simply Coulomb's inverse square law, Coulomb's force F equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The situations, there are two charges Q1 Q2, वो रिमूव करके हम Q1 की जगह Q and Q2 की जगह Q0 पुट करेंगे. ओके, सो डिस्टेंस इज R एंड E इक्वल टू टेस्टिंग चार्ज पर इंटेंसिटी की डेफिनेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स? E इक्वल टू F by Q0. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन F, अपॉन Q0 से Q0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसल आउट. सो E इक्वल टू क्या हो गया? 1 by 4 pi epsilon Q अपॉन R स्क्वायर. ये किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स. सो E इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon नॉट Q by R स्क्वायर. ओके, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं. Okay students, so E equal to F by Q0 and putting this value and also Q by S square R cube. Okay, this is the vector form. E equal to 1 by ये क्या जाएगा? mod of R cube and R vector. ये क्या है? ये टाइप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स. सो सिंपल वेक्टर फॉर्म में इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉड ऑफ ई वेक्टर एंड 1 by 4 pi epsilon naught Q by R cube, mod of R cube. Okay, so putting this value of unit vector R cap equal to, this is the formula, famous formula. Okay, unit vector. Okay, सो सिंपली यूनिट वेक्टर्स क्या होता है कि कोई भी r केप इक्वल टू r मतलब एनी पोजीशन एनी डिस्टेंस, r वेक्टर अपन मॉड ऑफ r यहाँ पुट करेंगे तो r वेक्टर अपन मॉड ऑफ r और r स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ r3. इसको मॉड में भी लगा सकते हैं. ओके,
सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है फार्मूला, जो फेमस फार्मूला। इसी में हम सुपरपोजिशंस भी फाइंड करेंगे, जो कि हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको आज का जो लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स ना भूलिए, क्योंकि हमने कल आपको जो वीडियो दिया था उसमें सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, उतना ही हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।